Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं निहारिका भुवानिया। Let's quickly run you through the headlines for the day. Benchmark domestic indices end in negative territory for third straight session. Sensex sheds 203 points. Nifty closes nearly flat. Major Asian indices register losses. European indices display mixed trend. And global crude oil prices register modest gains. Brent crude trades at $76.28 per barrel. घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 203 अंक गिरा, निफ्टी लगभग स्थिर रहा। एशिया के प्रमुख बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के बाजारों में भी मिला जुला रुख रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्यों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड $76.28 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 203 अंक यानी 0.27% की गिरावट के साथ 75,736 अंकों पर बंद हुआ। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 20 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 22,913 अंकों पर आ गया। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में सूचकांकों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप सूचकांक 1.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% से अधिक बढ़े। And now it's time for the detailed stocks in English. The benchmark domestic equity indices today ended in negative territory for the third straight session. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, shed 203 points or 0.27% to close at 75,736. Meanwhile, the National Stock Exchange Nifty 50 ended nearly flat with a fall of 20 points to settle at 22,913. The broader market indices at the BSE outperformed the benchmark indices. The mid-cap index rose over 1.1% and the small-cap index surged over 1.3%. In the Sensex index, 17 out of 30 companies logged losses. Among the top laggards, HDFC Bank shed more than 2.3%, Maruti slipped over 1.8%, and Tech Mahindra fell almost 1.7%. Conversely, among the top gainers, NTPC surged over 3.3%, Mahindra & Mahindra rose over 3%, and Adani Ports gained over 2.8%. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 21 sectors ended up. Among the top gainers, power as well as utilities both advanced over 2.1% each, metal gained over 2%, and services added over 1.8%. Conversely, among the top laggards, BankX lost 0.5%, financial services slipped 0.25%, and focused IT fell 0.1%. Meanwhile, overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,669 companies advanced, 1,273 declined and 111 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 22 companies hit their 52-week high, while 106 hit their 52-week low. So I'd like to bring in our expert here, Mr. Sharma. What do you think is the reason for this flat trend that we've been observing for some time now? You know, it was, I think, the third straight session that we saw the markets being slightly flat.
Yes, markets are consolidating actually at around 22,800. And since the last I would say many months, starting from September, there is a significant correction in the market, more than 10% from September till now, caused by, firstly, the deepening geopolitical developments in September, October, thereafter changing policy stance in US. That was anticipated that after the new government in January in US, there will be some change in the policy globally. US will change tariffs and all these things. So that has happened in many economies. That's why markets are volatile and consolidating at around their comfortable levels, like 22,800. Despite decelerating inflation, like inflation trajectory is coming down, the effect of such developments like geopolitical and US changing stance have nullified the effect of decelerating inflation and reducing policy rates. Like US is also reducing the policy rate, and our RBI also reduced the policy rate by 25 basis point. But that is nullified by such developments of policy stance and the geopolitics. जी, लेकिन डॉक्टर शर्मा अगर हम देखें ओवरऑल जो सेंटीमेंट है बाजार में या ओवरऑल जो प्रदर्शन है बाजार का, वो काफी हद तक स्टेबल है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जितने स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं वो बाजार को संभाले हुए हैं, और ये छोटी मोटी जो जियोपॉलिटिकल जैसे आपने कहा उनकी वजह से ये चेंजेस हमें लगातार दिखाई देंगे? देखिए, जो आपने सही कहा फंडामेंटल्स के बारे में, जो आपने बात कही कि जो मार्केट्स का एक कंफर्टेबल जोन है, अभी 22,800 के पास मार्केट से रहना चाहती हैं, वहीं पे कंसोलिडेट, कहीं ऊपर जाके फिर वापस वॉलेटाइल होके वहीं पे आके रुकते हैं. तो ये करेक्शन स्वाभाविक थी, देखते हुए कि बहुत ज़्यादा हाइज मार्केट ने बनाए और न्यू हाइज बनाए ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स. बट आवर फंडामेंटल्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग. हमारा ये नहीं है कि फंडामेंटल डिक्लाइन कर रहे हैं जिस वजह से मार्केट ये सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से आके मार्केट्स यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं. अगर कोई ग्लोबल ट्रिगर आएगा तो मार्केट्स वापस वहीं पे चला जाएंगे. ये जो सपोर्ट है ये फंडामेंटल्स की वजह से ही है कि मार्केट्स की में स्ट्रेंथ है, इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, जो फंडामेंटल्स हैं स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन सॉफ्टन हो रहा है, आरबीआई ने अपना रेट कट कर दिया है. ऑल दीज पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आर सपोर्टिंग द मार्केट एट सच लेवल्स. And it feels like the markets are waiting for direction slightly during this point of time, right? I mean, the global landscape is changing. So do you also think that investors are using the buy and dip strategy during this time, where we are really looking for some kind of direction? Yes, investors are using the buy and dip strategy because markets sometimes go up and then again decelerate to the same level. So there is some thought that buy at dips and sell at high. People are making some kind of profits from that volatility. But for the retail investors, they should be very, very cautious at this juncture also, because markets are consolidating, but further deceleration can't be ruled out. So that's why I would say there is a need for cautious approach for the retailers, those who are for the long-term investments in the market. जी, डॉक्टर शर्मा, अगर हम देखें जो कंपनियों का प्रदर्शन अगर सेक्टर वाइज देखें तो खास तौर से अगर हम जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात करें, और हम देख रहे हैं कि बैंकेक्स जो है उसमें लगभग 0.5% की हमें गिरावट दिखाई दी. बहुत सारे बैंकों के शेयर भी काफी गिरे. तो अगर बैंकेक्स को हम देखें, बैंकिंग सेक्टर को देखें या ऑटो सेक्टर को देखें, इन दोनों सेक्टर्स का खासतौर से आप किस तरह का प्रदर्शन देखते हैं शेयर मार्केट में? देखिए, इसमें जो बैंकिंग है और जो ऑटो है, दोनों ही ग्रोथ से जुड़े हैं.
जब हम ग्रो करते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है, तो हमारा क्रेडिट भी ग्रो करता है और बैंक्स भी मुनाफे में आते हैं, और जो जब डिमांड एक्सपेंड होती है तो ऑटो सेक्टर भी मुनाफे में होता है। तो उसमें कुछ हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो ग्लोबल फैक्टर हुए उसकी वजह से इकोनॉमी में थोड़ी रफ्तार जो है, जो हमारा एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट था, हम सोच रहे थे कि शायद इकोनॉमी इस साल भी 7% के आसपास ग्रो करेगी, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें फर्क है जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, खास करके जो फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो बैंकिंग सेक्टर में और ऑटो सेक्टर में जो डिमांड की जो सपोर्ट थी, वो इस टाइम पे उतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। In fact, I feel now's the right time to ask you this, since we are talking about geopolitical factors and the US. So there is also news about likely tariffs in the month of April, perhaps, specifically on pharma companies, and pharma companies likely to face a squeeze in margins, you know. So how do you anticipate stocks in the pharma sector behaving at this point of time, and especially if the tariffs come in? So what is the likely impact of that? I don't see there will be some knee-jerk action by the US because that is only the news-based volatility so far. They are discussing and they are sometimes announcing that tariffs will be imposed. But there is no rationale for those tariffs because we are a great trade partner. US is our largest trade partner and we have long-term collaborative trade trajectory going forward. And we have a lot of aspirations that trade will flourish and make new and new highs in the merchandise and in the services. So I don't see that there will be some knee-jerk impact on the companies, whether the pharmaceutical sector or the textiles or or steel or any other sector. But apprehensions are there, and volatility will remain till the situation settles at some rational level. डॉक्टर शर्मा, अगर हम कुछ और सेक्टर्स को देखें, खासतौर से अगर पावर की बात करें, मेटल की बात करें, आज बाजार में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इन सेक्टर्स को कैसे देखते हैं और निवेशकों को आप क्या सलाह देंगे कि कौन से सेक्टर को वो प्राथमिकता दें अगर निवेश का वो फैसला लेते हैं इस मौजूदा दौर जो है मार्केट का उसमें? देखिए, जो सेक्टर्स की बात है, मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी ही प्रॉमिसिंग है। एवरी सेक्टर इज प्रॉमिसिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बस ये जो कुछ हर्डल्स होती हैं, लाइक कभी जियो पॉलिटिक्स और कभी ये सब चीज़ें, पहले कोरोना ने इम्पैक्ट किया, उसके बाद जियो पोलिटिकल, नाउ द ट्रेड टेंशंस, तो ये कुल मिला के थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब करती हैं, जिसकी वजह से कई बार हम वॉलेटिलिटी देखते हैं। लेकिन हर एक सेक्टर ही प्रॉमिसिंग है। फिर भी आपने पूछा तो मैं बताना चाहूंगा कि जो खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो सरकार ने फोकस किया है पिछले काफी वर्षों से, जो कैपेक्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो खास करके रोड्स में, ब्रिजेस में और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजों में जो इनसे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो उनमें इन्वेस्टमेंट जो है काफी भरपूर रहेंगी। दूसरा, एनर्जी के ऊपर सरकार का बहुत फोकस है, क्लीन एनर्जीज के ऊपर, ग्रीन एनर्जीज के ऊपर बहुत फोकस है। बाकी जब इकोनॉमी ग्रो करती है, जैसे हमारा एंटिसिपेशन है कि इकोनॉमी विल ग्रो 7% नेक्स्ट ईयर और इकोनॉमी शुड ग्रो मोर देन 8% टू बिकम विकसित भारत। सो इफ द इकोनॉमी इज इन अ ग्रेट मोमेंटम एंड ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली, देन द ऑल स्टॉक्स विल ग्रो. Despite some problems in some stocks, I can't say, but the every sector will grow when the economy grows in momentum in the higher and higher trajectory. So infrastructure will also grow, energy will also grow, banking will also, pharma will also, textiles, all these sectors will grow in tandem in the growth momentum of the economy. Barring a few firms, sectors will remain in. लेकिन जैसे डॉक्टर शर्मा, हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो ट्रंप ने जिस तरह टैरिफ को लगाने की बात की है और जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात की है, तो फार्मा के अलावा और कौन से ऐसे सेक्टर हैं, अगर ऐसा होता है तो कौन से ऐसे हमारे सेक्टर्स हैं जिन पर विपरीत असर पड़ने वाला है? देखिए, जो सेक्टर्स हैं, खास करके जो अगर आप आइटम्स में जाएंगे, अगर हम टॉप 10 आइटम्स में देखें तो उसमें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं,
बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होती हैं, दोनों में अपने अपने जो एडवांटेज होते हैं जी। तो ट्रेड वॉर में तो मैं समझता हूं कि किसी का फायदा नहीं होता। अगर कोई टैरिफ इंक्रीज करता है तो दूसरा व्यक्ति भी रेडी है अपना टैरिफ इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज ट्रेड इज फॉर वेलफेयर, ट्रेड इज नॉट फॉर वॉर, ट्रेड इज टू क्रिएट वेलफेयर। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड शुड रिमेन सेम। हमें वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए कि अगर मैं उस कंट्री से ये चीज खरीदता हूं तो मेरे कंट्री में कितना वेलफेयर हो सकता है, बजाय इसके कि मैं वो कंट्री मेरे को इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं इसके ऊपर टैरिफ लगा के वो रोक देता हूं, भले ही हमें ज्यादा उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने कंट्री में पड़े, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे। सो दैट शुड नॉट बी द फिलॉसफी। फिलॉसफी शुड बी टू फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि उनको उस रेट पे जो एक रैशनल, इंटरनेशनली एक रैशनल रेट है, उसके ऊपर जो सामान है वो मुहैया हो। शायद यूएस भी इसी फिलॉसफी के ऊपर चलेगा, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा नीचर्क रिएक्शन लेके वो ऐसे basically a collaboration, not competition, right? Yes, that is what ensures exactly welfare. You rightly said that collaboration not competition. Correct. और चलते हैं अगली खबर की ओर, रुपए का हाल जान लेते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 30 पैसे मजबूत होकर 86 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर दिवसीय कारोबार में 106.87 पर चल रहा था। डॉक्टर शर्मा, काफी दिन के बाद एक रुपए ने अच्छा प्रदर्शन किया है, नहीं तो हम लगातार ये देख रहे हैं कि रुपए में गिरावट और डॉलर में मजबूती दिख रही है। तो रुपए की जो मौजूदा स्थिति है, और अभी आपको क्या लगता है किस रेंज में रुपया रहने वाला है, और क्या आपको लगता है कि रिजर्व बैंक इस बारे में कोई इंटरवेंशन करने का फैसला करेगा? देखिए, रुपये को एंटिसिपेट करना कि रुपये कहाँ पे जाएगा, वो नोबडी नोज के, ये तो ग्लोबल फैक्टर्स हैं जहां से रुपये की डायरेक्शन होती है। लेकिन इतना जरूर है कि जो अभी जो हमने गिरावट देखी, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी, क्योंकि कुछ मार्केट में सेलिंग आती है तो डॉलर, डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से प्रेशर आता है, जो हमें देखा कि 10% से ज्यादा मार्केट में क्रैश। लेकिन जो आने वाले टाइम में अगर ये जो वॉलेटिलिटी है, जिसको खास करके मैं न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी कहूंगा, अभी एक्चुअल में बहुत कम हुआ है, लेकिन ये एक एप्रीहेंशंस के बेसिस पे काफी मार्केट से वॉलेटाइल हो गए, जो रुपये को में भी गिरावट देखी गई, तो उसमें करेक्शन जरूर आएगी। रुपये अपना एक सही जो स्थान है वो वापस गेन करेगा। तो इतना जरूर मैं बता सकता हूं कि रुपये विल फाइंड इट्स राइट प्लेस इन दी कमिंग डेज। जी, और चलते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। बैठक में डॉक्टर जयशंकर की भागीदारी से G20 देशों के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूती मिलेगी और इस महत्वपूर्ण मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज को बल मिलेगा। डॉक्टर शर्मा, आप क्या कहेंगे? G20 के साथ जिस तरह का भारत का रिश्ता है, निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। हम ही ने इनिशिएट किया जब हमें हमारे G20 हुआ 2023 में, तो हमने ही ये इनिशिएट किया, जिसकी आज जो आगे महत्वपूर्ण कदम उठ रहे हैं। तो इंडियाज थॉट्स, इंडियाज सपोर्ट इज बिहाइंड दिस डेवलपमेंट एक्ट। जी, तो जो जैसे ग्लोबल साउथ की बात है, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है इस बैठक में उठाए जाएंगे? खास तौर पे जो ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं, वो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको इस मंच पर भारत आगे बढ़ाएगा? देखिए, जो मुद्दे हैं उसमें खास करके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हमारा जो फोकस रहेगा, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको फोकस किया जा सकता है। और टेररिज्म तो हमेशा एक ऐसा मुद्दा रहता है जो बहुत ही प्रभावित करता है काफ़ी देशों की ग्रोथ को, तो उसको भी डिस्कस किया जाना चाहिए। और ख़ास करके जो कोऑपरेशन है, जिस तरीके से हम आपस में बाइलेटरल एग्रीमेंट्स या मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें किस तरीके से हम उनको और ज़्यादा अच्छे से वेलफेयर ओरिएंटेड बना सकते हैं, उसके ऊपर। एंड इन्वेस्टमेंट्स,
बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फोकस एंड ग्रीन एनर्जीज के ऊपर फोकस। जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा कि G20 में यहाँ पे जब भारत में हुआ तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काफी फोकस था। और क्रिप्टो करेंसीज को भी अच्छे से डिस्कस किया गया था उस टाइम पे। तो हम समझते हैं कि एक ऐसे क्रूशल, और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए जब वापस कई बार जो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जब कमोडिटी फ्रेगमेंटेशंस होती हैं, जब मोनोपोलीज की वजह से कुछ कंट्रीज अपना उस चीज़ को आगे ज़्यादा प्राइस के ऊपर बेचते हैं, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर स्वाभाविक जो एक सोच बन सकती है उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। In fact, we can also see collaborations in the energy sector coming through, right? Because energy is a topic that we have been talking about with the recently concluded India Energy Week. जी जी बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी का हमारा एक मेन फोकस है। We are focusing significantly on the energy, particularly on the clean energy and the green energy. That's why we are focusing on green hydrogen, development of green hydrogen at a rational price. और खास करके जो लॉजिस्टिक्स का जो पहले एक कॉरिडोर की बात हुई, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हुई हमारे G20 में जब इंडिया में हुआ, तो ऐसे कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर भी फोकस जो है जी वो होना चाहिए। और ऐसे समय में डॉक्टर शर्मा जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल नॉर्थ में भी काफी समस्याएं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम देखें, और अमेरिका का जिस तरह का जो इक्वेशन अब EU के साथ और यूरोप के देशों के साथ बन रहा है, तो उस कन्फ्रंटेशन का, उस टकराव का क्या आपको लगता है कि जो ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्था है उसको लाभ मिलेगा? देखिए, जो ग्लोबल साउथ है वो एक प्रोग्रेसिव, मैं कहूँगा कि प्रोग्रेसिव एक ब्लॉक है जो काफी कंपैरेटिवली बहुत ही तेज गति से ग्रो कर रहा है, जिसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है, दैट इज इंक्रीजिंग ईच डे। तो आने वाले टाइम में जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल साउथ का, दैट विल बी मोर सिग्निफिकेंट इन द एरा ऑफ डेवलपमेंट्स गोइंग फॉरवर्ड। Right. And with that, let's also take a look at the next story. The Reserve Bank of India has said that high-frequency indicators point towards a sequential pickup in the momentum of economic activity during the second half of 24-25, which is likely to sustain moving forward. The RBI, in its monthly bulletin, noted that the Union Budget 25-26 has placed a thrust on boosting consumption while maintaining the quality of expenditure, with effective capital expenditure or GDP ratio budgeted to improve to 4.3% in 25-26 from 4.1% in 24-25. It further noted that the uncertainty surrounding global trade and geopolitical landscape have had a bearing on domestic equity markets. However, it added that strong macroeconomic fundamentals, along with improvements in various measures of external sector vulnerability, have helped India tide over the ongoing wave of global uncertainty. So, talking about these high-frequency indicators, can you pinpoint certain factors or indicators that could, hint towards this pickup in momentum of economic activity? As also, with so many collaborations, we just spoke about the G20 foreign ministers meeting. So, do you think all of this is going to contribute to this momentum of economic activity, or is there like one factor which is going to be responsible? In the second half, comparatively, there is uptick in the economic activity and economic fundamentals, economic variables like the IIP numbers, core infrastructure, exports, bank credit, fiscal deficit. All these are in a steady zone. Like fiscal deficit is decelerating, and 4.9 was anticipated. Now the effective will be 4.8% for the current financial year. So the bank credit is also growing in a great trajectory in the double digits. This year also, last year also grew in the double digits. And the exports, though there are so many challenges at the global level, but still our exports remain steady, supported by the services exports. Export growth will be somewhere between 6 to 7%, and we will be able to achieve more than $800 billion trajectory in our exports, including the merchandise and services. So fundamentals are strong. Despite the global challenges, those are contributing in the strength of the economy. And as anticipated at 6.4%, we are
thinking that this will not be 6.4 but above the 6.4, maybe at around 6.6 or 6.7% for the current financial year also. In fact, talking about exports, so with AI making such huge waves everywhere in the world, right? Be it the US, be it our own country, be it China. So let's talk about exports in the software sector, right? How do you see exports in the software sector shaping up our economy or economic development in the near future? Actually, software exports are a major growth driver of the overall services exports. Earlier, we started software services, exports of the software services, and those exports also provided a hand-holding to the overall services exports. Now, the services exports are increasing significantly as compared with the merchandise exports. And sometimes there are thoughts that services exports will exceed the merchandise exports in the coming years if the growth remains intact in the years to come. जी, और चलते हैं एशिया के अन्य बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट का दौर रहा। हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग 1.6% और जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई 1.2% से अधिक गिरा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में गिरावट 0.6% से अधिक और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.17% की रही। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग स्थिर रहा। यूरोप के शेयर बाजारों में मिला जुला रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.6% और जर्मनी का डेक्स 0.4% से अधिक पर कारोबार कर रहे थे, जबकि लंदन के फुट्सी में 0.1% की गिरावट चल रही थी। And with that, let's also give you a roundup of the US markets. US stocks ended in positive territory yesterday. The S&P 500 rose 0.24%. The Dow Jones Industrial Average gained 0.16%, while Nasdaq Composite ended nearly flat with a positive bias. Meanwhile, the minutes of US Fed's Federal Open Market Committee meeting held in January showed that the committee was well positioned to take time to assess the evolving outlook for economic activity, the labor market, and inflation, with the vast majority of policymakers pointing to a still restrictive policy stance. Participants indicated that provided the economy remained near maximum employment, they would want to see further progress on inflation before making additional adjustments to the target range for the federal funds rate. और सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.31% बढ़कर 86,340 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 1.03% बढ़कर 97,820 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.29% बढ़कर 86,158 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। Gold prices hit a fresh high of 89,450 per 10 grams in the national capital on Thursday, advancing rupees 50 amid firm global trends, according to the All India Sarafa Association. The precious metal of 99.9% purity had settled at rupees 89,400 per 10 grams on Wednesday. Gold of 99.5% purity went up to rupees 50 to establish a record of 89,050 per 10 grams. And to give you a roundup of the crude market as well, oil prices witnessed modest gains today as an industry body report showing build-up in US crude stockpiles limited the rise. Brent crude was trading over 0.2% up at $76.28 per barrel, and WTI crude gained over 0.1% to trade at around $72.33 per barrel when reports last came in. डॉक्टर शर्मा, आपका एक हम क्विक कमेंट चाहेंगे। सोना आज फिर से एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है और न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी हमें ऊंचाई देखने को मिल रही है। आप क्या सोने का किस तरह का भविष्य देखते हैं? देखिए, ये जो ऊंचाई है ये जारी रहेंगी। सोना जो है आगे छलांग लगाता रहेगा, क्योंकि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो फैक्टर सोने में बहुत ही सपोर्टिव है। खास करके जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और दूसरा जो उनकी अब रिकंस्ट्रक्शन की बात
चलेगी। वहाँ पे यूएस ने भी दावा किया है कि वो काफी सपोर्ट करेंगे, तो डॉलर एक्सपेंशन भी होगा। तो आने वाले टाइम में जो गोल्ड है उसमें चमक जो है वो जारी रहेगी और भरपूर छलांग ऐसे ही आते रहेंगे। जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। डॉक्टर शर्मा, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you so much for joining us, Mr. Sharma, today. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end in negative territory for third straight session. Sensex sheds 203 points. Nifty closes nearly flat. Major Asian indices register losses. European indices display mixed trend. Global crude oil prices register modest gains. Brent crude trades at $76.28 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.